Good morning all. We are discussing about the crystal field splitting in octahedral complexes. As I told you earlier that in free metal cation all the 5d orbitals are degenerate. But when ligands approach towards the metal ion, degeneracy breaks, and this is called crystal field splitting in octahedral fields. And orbitals are arranged according to electrostatic force of repulsion and attraction. This can be understood by considering an octahedral complex. So, consider the octahedral complex having a coordination number 6 and the ligands occupy the 6 corners of the octahedron, and let us suppose that the central metal ion, that is Mn positive, has only one d electron, that we are considering d1 configuration, and in the absence of any ligand this electron can occupy any of the degenerate orbitals, any of the degenerate d orbitals. However, when ligand starts approaching the central metal ion, then what will happen? All 5 d orbitals will not remain of equal energy. As the 6 ligands approach the central metal ion along the axis, the 2 d orbitals, that is dx square minus y square and dz square, are oriented along the axis and designated as Eg orbitals. And because these are repelled more by the ligands than the other 3 orbitals, that are dxy, dyz and dzx, which are oriented in between the axes, and these are designated as T2g orbitals. This shows that the 2 lobes of dz square and 4 lobes of dx square minus y square orbital directly point towards the corners of the octahedron, where negative charge of the ligands are concentrated and remaining 3 orbitals are oriented in between the axes. And in these case of octahedral complex, the former 2 ligands are designated as Eg orbitals, that is dx square minus y square and dz square, while the later 3 orbitals, that is dxy, dxz and dyz, are designated as T2g orbital. And it must be remembered that greater the repulsion, greater is the increase of energy. Therefore, in octahedral complex, the 5d orbitals got splitted into 2 sets, one considering the orbitals of higher energy, and this is known as Eg set, and another set is of T2g set, which are of lower energy. And the crystal field splitting of these octahedral levels in octahedral complexes is shown in this diagram. So, if we considering state 1, what the state 1 represent? It represents the degeneracy of all 5d orbitals of isolated central metal ion. And state 2 represents the hypothetical degeneracy of all the orbitals at higher energy level when electrons in the d orbital of the metal ion are being affected uniformly by the negative charge of the ligands. And final state, that is state 3, represents the crystal field splitting as I discussed now. So, crystal field splitting in octahedral complexes. Now, next मैंने बोला क्या? I have told that कि जो metal free metal cation है उसके 5 d orbitals क्या हैं? Degenerate हैं. लेकिन जैसे ligands अप्रोच करेंगे मेटल आयन को, उनकी डिजेनरेसी क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, और इसी को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में. और ये जो ऑर्बिटल्स हैं, दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन. तो जो स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की हुई, इसको हम ऐसे समझते हैं कि हमने एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को कंसिडर किया. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा सेंट्रल मेटल आयन का, वो 6 होगा. इसका मतलब जो लिगेंड्स हैं वो 6 कॉर्नर्स ऑक्टाहेड्रल के ऑक्यूपाई करेंगे. और जो हम ये कंसिडर कर चल रहे हैं कि जो मेटल आयन है उसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट इज D1 कॉन्फ़िगरेशन की हम बात कर रहे हैं. जब कोई भी लिगेंड अप्रोच नहीं करेगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कोई भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करेगा. जैसे ये 5 d ऑर्बिटल्स हैं, इनमें से जो D1 इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी 5 में से किसी भी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा. लेकिन जैसे ही लिगेंड्स अप्रोच करेंगे सेंट्रल मेटल आयन को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए,
तो ये पांचों जो d ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी सेम नहीं रहेगी, पांचों d ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो सेम नहीं रहेगी। जैसे लिगेंड्स अप्रोच करेंगे मेटल सेंट्रल मेटल आयन को, तो ये जो d ऑर्बिटल्स हैं ये दो सेट्स के अंदर स्प्लिट हो जाएंगे। एक होगा Eg सेट जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी और दूसरा होगा T2G सेट जिसकी एनर्जी कम होगी। जो Eg सेट है इसके अंदर दो ऑर्बिटल्स आएंगे, टू d ऑर्बिटल्स होंगे, dx² माइनस y² एंड dz², और जो T2G है इसके अंदर 3d ऑर्बिटल्स होंगे, दैट इज dxy, dyz, dxz। जो ये 2d ऑर्बिटल्स हैं दैट इज dx² माइनस y², दीज आर ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस। ये हमने पिछली लास्ट टू लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये जो d ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस एंड इनकी रिपल्शंस जो होगी वो लिगेंड से ज्यादा होगी दैन दीज 3d ऑर्बिटल्स, because these 3d orbitals are lying, their lobes are lying in between the axis, and in these 2d orbital their lobes are lying on the axis, therefore they feel more repulsion, तो ये ज्यादा repulsion feel करेंगे and these 3d orbitals will feel less repulsion। इसी वजह से जो दो इनको हम बोलते हैं Eg सेट एंड इसको हम 3d ऑर्बिटल्स के सेट को हम बोलते हैं T2G सेट। अब जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी ज्यादा होगी, तो d ऑर्बिटल्स की जो स्प्लिटिंग है वो दो सेट्स में चली गई, Eg सेट में एंड T2G सेट में। ये हम इस डायग्राम से देख रहे हैं। और दूसरा ये है कि इस डायग्राम में तीन स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया है, दैट इज स्टेट 1, स्टेट 2 एंड दिस इज स्टेट 3। जो स्टेट 1 है इसके अंदर ये रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोलेटेड मेटल आयन को। आइसोलेटेड मेटल आयन मींस जो स्टेट 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोलेटेड मेटल आयन को। आइसोलेटेड मेटल आयन मींस कोई अभी इसके लिगेंड के साथ इंटरेक्शन नहीं है और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, फ्री मेटल आयन प्रेजेंट है। स्टेट 2 रिप्रेजेंट कर रहा है hypothetically degeneracy of orbitals at higher energy level, when electrons in the d orbital of a metal ion are being affected uniformly by the negative charge of ligands। मतलब कि ligands अप्रोच करने शुरू कर रहे हैं और ligands की अप्रोचिंग की वजह से इसकी degeneracy hypothetical है, लेकिन इसकी एनर्जी जो है वो फ्री मेटल स्टेट 1 से इंक्रीज हो गई है। और जो स्टेट 3 है वो कंप्लीट स्प्लिटिंग जो है d ऑर्बिटल्स की उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने यही लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि स्प्लिटिंग जो है ऑर्बिटल्स की वो दो सेट्स में हो रही है, दैट इज Eg सेट। Eg सेट के अंदर दो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, dx² माइनस y² एंड dz²। इसकी एनर्जी ज्यादा होगी बिकॉज लिगेंड्स अप्रोच टुवर्ड्स द एक्सिस एंड दीज ऑर्बिटल्स लाइज ऑन द एक्सिस, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से द एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिटल्स रेज्ड फ्रॉम द बेरी सेंटर। बेरी सेंटर वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट टू लास्ट लेक्चर। नेक्स्ट इज T2G सेट। T2G सेट के अंदर 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज dxy, dyz एंड dxz। It is lower in energy as orbitals lie in between the axes, and the force of repulsion between the electron in d orbital and ligand is less, so orbitals lies below the बेरी सेंटर। तो इसमें यही है dx² माइनस y² एंड dz²। अप्रोचिंग लिगेंड्स lie on the axis, so repulsion is more, and in these three in T2G set the 3 orbitals dxy, dyz and dxz, these lies in between the axis and force of repulsion जो होगी वो कम है, इसी वजह से जो ऑर्बिटल्स हैं they lies below the बेरी सेंटर। और ये जो एवरेज सेंटर है हम इसको क्या बोल रहे हैं, बेरी सेंटर। बेरी सेंटर से इसकी एनर्जी Eg की एनर्जी रेज हो गई एंड बेरी सेंटर से T2G की एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब कितनी एनर्जी इंक्रीज हुई बेरी सेंटर से, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.6 डेल्टा नॉट एंड और वी कैन से 6 dq। देखो जो ये एनर्जी है Eg एंड T2G इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हाइपोथेटिकली डेल्टा नॉट से, एंड डेल्टा नॉट इज इक्वल्स टू 10 dq। जो यहाँ पर नॉट है दैट
represents the octahedral field, or O, you can say O, this represents the octahedral field, and delta O is equals to 10 dq. 10 dq के इक्वल है, और जो पेरी सेंटर से Eg ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हुई दैट इज 0.6 डेल्टा नॉट, और वी कैन से 6 dq, एंड जो बेरी सेंटर से T2g ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिक्रीज हुई दैट इज इक्वल्स टू माइनस 0.4 डेल्टा नॉट और 4 dq. माइनस नहीं लगाया यहाँ पर स्लाइड में, सो आप इसको माइनस ही समझना, जब आप डायग्राम बनाओगे तो इसमें लिखना माइनस 0.4 डेल्टा नॉट. यस, तो 10 डेल्टा नॉट, और सॉरी 10 dq इज इक्वल्स टू डेल्टा नॉट. नाउ जो एनर्जी है 3 ऑर्बिटल्स की दैट इज डिक्रीज्ड बाय माइनस 0.4 डेल्टा नॉट, या हम इसको बोल दें 2/5 delta naught, because 2/5 delta naught is equals to 0.4 delta naught. तो जो एनर्जी डिक्रीज हुई दैट डिक्रीजेस बाय 2/5 delta naught, and energy of Eg orbitals increases by 3/5 delta naught. तो इससे हमें ये मालूम चल रहा है कि जो ये टोटल एनर्जी है अनस्प्लिट ऑर्बिटल्स की दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ स्प्लिट ऑर्बिटल्स. तो टोटल एनर्जी अनस्प्लिट ऑर्बिटल्स की इक्वल किससे होगी? एनर्जी इज इक्वल्स टू द एनर्जी ऑफ स्प्लिट डी ऑर्बिटल्स. तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इसी तरीके से होगी. जो एवरेज एनर्जी है डी ऑर्बिटल्स की वो चेंज नहीं होनी चाहिए, एंड जो एवरेज एनर्जी है इसी एवरेज एनर्जी को हम बेरी सेंटर रूल बोलते हैं, एंड दिस इज वेरी सिमिलर टू ग्रेविटी टाइप रूल. इट मीन्स दैट डिक्रीज इन एनर्जी of set of orbitals which lies below the barycenter, or we can say which lie at the lower energy, must be balanced by the energy must be balanced by the corresponding increase in other set of orbitals. For example, energy of these two Eg orbitals raised by 6 dq or 0.6 delta naught, and while the energy of these three T2g orbital is lowered by 0.4 delta naught और 4 dq. तो ये एनर्जी टोटल जो एवरेज एनर्जी है वो क्या चेंज नहीं होनी चाहिए, और एनर्जी ऑफ अनस्प्लिट ऑर्बिटल्स जो है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ स्प्लिट ऑर्बिटल्स. तो यही मैंने यहाँ बोला, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज द एनर्जी डिफरेंस between the T2g and Eg orbital, and it is represented by delta naught or 10 dq, where O stands for the octahedral, and by convention delta naught equals to 10 dq. Eg orbitals are 0.6 dq or plus it's यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है. Eg orbitals are 6 dq or 0.6 delta naught above the energy level, and T2g orbitals are minus 0.4 dq ये सही है, माइनस 0.4 डेल्टा नॉट और 4 dq बिलो द एनर्जी लेवल. तो यहाँ पर 0.6 नहीं है, दिस इज 6 dq. एवरेज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स डज नॉट चेंज, दिस इज नोन एज बेरी सेंटर रूल. बेरी सेंटर रूल क्या बोल रहा है? एनर्जी डिक्रीज इन वन सेट ऑफ ऑर्बिटल्स इज बैलेंस्ड बाय इंक्रीज इन एनर्जी इन अनदर सेट ऑफ ऑर्बिटल्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. जब भी आपको एग्जाम में पूछेंगे आपको ये सब चीज विद डायग्राम उसको एक्सप्लेन करना है. डायग्राम में यहाँ पर मैंने Eg ऑर्बिटल्स को डेजिग्नेट नहीं किया, तो आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो प्लीज आप डेजिग्नेट कर लीजिए. दिस इज dx² माइनस y² dz², dxy, dyz एंड dxz. आप इसको डेजिग्नेट कर लीजिएगा, और यहाँ पर माइनस 0.4 डेल्टा नॉट और माइनस 4 dq भी करेक्ट कर लीजिएगा. सो दिस इज क्रिस्टल फील्ड एंड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. और कैलकुलेशन हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की कैसे करेंगे दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट स्लाइड. तो ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए. Eg और T2g ऑर्बिटल्स में वो कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, D2 कॉन्फ़िगरेशन है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, D3 में 3 इलेक्ट्रॉन है. तो इसी तरीके से हम इनकी CFSE को कैलकुलेट करेंगे. एंड
we will discuss this in our next slide. So thank you.